हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे अमीनो एसिड और उसके स्ट्रक्चर के बारे में और कैसे अमीनो एसिड को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, देयर साइड चेन, पोलैरिटी, न्यूट्रिशन एंड द on the basis of the metabolic fate of amino acid, and what is the other modified amino acid found in the biological system, and the properties and the function of the amino acid. So first we डिस्कस व्हाट इज अमीनो एसिड। अमीनो एसिड कई चेन्स बनाता है जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। तो अमीनो एसिड एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड एंड फॉर्म करते हैं प्रोटीन को, एंड ईच प्रोटीन हैज स्पेसिफिक एंड यूनिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड दैट डिफाइंस बोथ इट्स थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड द बायोलॉजिकल फंक्शन। अमीनो एसिड का स्पेसिफिक होते हैं फॉर द डिफरेंट प्रोटीन्स एंड इनके सीक्वेंसेस नंबर्स भी चेंज होते हैं फॉर द डिफरेंट प्रोटीन्स, और ये अमीनो एसिड के सीक्वेंस ही डिसाइड करते हैं कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होगा और उनका फंक्शन क्या होगा। अमीनो एसिड इज अ ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन टू फंक्शन ग्रुप। अमीनो एसिड के पास दो फंक्शन ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है एंड एक अमीनो ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक नेचर का होता है और अमीनो ग्रुप बेसिक नेचर का होता है। देयर इज ये कार्बन है और कार्बन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है एंड देन अमीनो ग्रुप अटैच होता है। उसके अलावा एक हाइड्रोजन और साथ में साइड चेन के लिए आर ग्रुप पाया जाता है। तो ये अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। डिफरेंट अमीनो एसिड पे जो साइड चेन्स है वो चेंज हो जाती हैं, और ग्लाइसिन जो कि एक्सेप्शन है, वहां पे साइड चेन नहीं पाई जाती, उसमें दूसरा हाइड्रोजन पाया जाता है। Let's be discuss classification of amino acid. On the different basis, amino acid are classified according to their side chain, structure, polarity, nutrition, and the metabolic fate. First we discuss on the basis of structure and the side chain of the amino acid. On the basis of the structure, amino acid are classified in the three group: aliphatic side chain, aromatic side chain, and the amino acid side chain. Aliphatic side chain also has a sub classification. First is the simple amino acid, which example is a glycine and the alanine. Then second, which amino acid has a sulfur group, so example is a methionine and the cysteine. And third is a branched chain amino acid, which is valine, isoleucine, and the leucine. And the next, which amino acid has a OH group, so that amino acid are tyrosine, serine, and threonine. And some amino acid are basic in nature, so they are aspartic acid and the glutamic acid. Basic amino acid which have a aliphatic side chain is a histidine, arginine, and the lysine. And the next, which amino acid have a amide group, so amide group amino acids are asparagine and glutamine. Next, aromatic side chain, so phenylalanine, tyrosine, tryptophan, and the histidine has an aromatic side chain. And the last, amino acid side chain, so example is the proline. Next, on the basis of the polarity, amino acid are classified in the polar and the non-polar. Polars are hydrophilic in nature, which loves the water, and the hydrophobic are non-polar, which is hate the water. Hydrophilic are also sub-classified into the negative charge, uncharged, and the positive charge. Negative charge amino acid are aspartic acid and the glutamic acid. Positive charged amino acid is lysine, arginine, and the histidine. And next, uncharged polar amino acids are serine, threonine, asparagine, glutamine, and the cysteine. Then next, non-polar. Non-polar amino acid are sub-classified into the aliphatic side chain and the aromatic side chain. Aliphatic side chain, which are non-polar amino acid, is a glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine, proline, and the methionine. And the aromatic side chain, which is also non-polar, tyrosine, phenylalanine, and the tryptophan. The next classification of amino acid is based on the nutritional requirement. There is a three group: essential, semi-essential, and the non-essential. Essential amino acid
वो अमीनो एसिड्स होते हैं जिनको डाइट में लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये बॉडी में खुद सिंथेसाइज नहीं होते, तो अगर हम इन अमीनो एसिड्स को डाइट में नहीं लेते हैं तो इससे रिलेटेड जो भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं, डिफिशियंसी की वजह से कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो इसेंशियल अमीनो एसिड है फिनाइलएलानिन, वैलिन, थेरियोनिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन, हिस्टीडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, लूसीन। सो इसका निमोनिक है एल-बिट्ठल एमपी, एल फॉर ल्यूसीन एंड देन बिट्ठल, V for valine, I for isoleucine, T for tryptophan, threonine, histidine, A for arginine and L for lysine and then MP for methionine and the threonine. So इस तरह से इसका निमोनिक है L-बिट्ठल MP. Then next है सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड. तो सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं? जो नियोनेट्स होते हैं, जो बेबीज होते हैं, उनमें ये एसेंशियल होता है, लेकिन बाद में जाकर ये हमारी बॉडी में खुद सिंथेसाइज हो जाते हैं। तो आर्जिनिन और हिस्टीडीन सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। Then next है non essential amino acid. That's mean कि it is not required in the diet and it already synthesized in the body. So non essential amino acid हमारी बॉडी में खुद synthesize हो जाते हैं from the essential amino acid. So they are the glycine, proline, serine, glutamic acid, glutamine, alanine, tyrosine, cysteine, aspartic acid and the asparagine is the example of the non essential amino acid. Next क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द मेटाबॉलिक फेट कि वो अमीनो एसिड आगे किस मेटाबॉलिज्म में एंटर करेंगे। तो दे आर 3 टाइप्स, ग्लूकोजेनिक, कीटोजेनिक एंड द बोथ ग्लूकोजेनिक एंड द कीटोजेनिक। सो ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जितने भी इंटरमीडिएट्स बनते हैं उनमें हेल्प करते हैं या फिर उनको सिंथेसाइज करते हैं, लाइक एलानिन, आर्जिनिन, एस्पार्जिनिन, एस्पार्टेट, एस्पार्जिन, सिस्टीन, मेथियोनिन, ये सभी क्या है? ग्लाइसिन, हिस्टीडीन, प्रोलीन, ये सब ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड हैं। अब ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड हेल्प क्या करते हैं? तो जैसे जब ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है तो उसमें ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड एंटर करके पायरुवेट से ग्लूकोज फॉर्मेशन करते हैं ड्यूरिंग स्टार्वेशन कंडीशन। एंड देन आता है ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक। ऐसे अमीनो एसिड जो ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक दोनों तरीके के होते हैं, वो है टायरोसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानिन एंड द ट्रिप्टोफैन। एंड देन नेक्स्ट है कीटोजेनिक। सो ल्यूसिन एंड लाइसिन आर द एग्जांपल ऑफ द कीटोजेनिक अमीनो एसिड। सो इस तरह से 20 अमीनो एसिड्स हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाते हैं। उसके अलावा 2 एक्स्ट्रा अमीनो एसिड है, सेलिनोसिस्टीन जो कि 21st अमीनो एसिड है और इसमें सेलेनियम ज़्यादा पाया जाता है इन कंपैरिजन टू सल्फर ऑफ द सिस्टीन, क्योंकि सिस्टीन एक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, लेकिन सेलेनोसिस्टीन में सल्फर से ज़्यादा सेलेनियम पाया जाता है। और इट इज़ लोकेटेड ऑन द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम दैट पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन। सो ये एंजाइम की एक्टिव साइट पे पाया जाता है जो कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करते हैं, और वो एंजाइम है ग्लूटाथियोन परऑक्सीडेज, थायरोइडॉक्सिन रिडक्टेज एंड द आइडोथायरोनिन डीआइडोनेज। इन एंजाइम की एक्टिव साइट पर सेलेनोसिस्टीन पाया जाता है। नेक्स्ट अमीनो एसिड जो कि 22nd अमीनो एसिड है वो है पायरोलाइसिन। पायरोलाइसिन लोकेटेड एट द एक्टिव साइट ऑफ द मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। सो मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम की एक्टिव साइट पे पायरोलाइसिन पाया जाता है, और ये पाया जाता है, ये एंजाइम मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया में पाया जाता है। पायरोलाइसिन लाइसिन से सिमिलर होता है। जब लाइसिन के साइड चेन पे पायरोलिन रिंग लिंक हो जाती है तब वो पायरोलाइसिन को फॉर्म करती है। सो दैट इज अबाउट द 22 अमीनो एसिड, which is 21st is selenocysteine and the 22nd is a pyrrolysine. Then next, modified or non-standard amino acids. So there is a other amino acid found in our biological system which is formed from the amino acid, different form of the amino acid. So first is the cysteine. Cysteine is a linkage of 2 cysteine side chain. तो जब 2 cysteine अमीनो एसिड मिलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से मिलकर बनते हैं सिस्टाइन। सो सिस्टाइन, एक सिस्टाइन ये रहा जिसमें सल्फर ग्रुप लगा है, एंड देन सेकेंड सिस्टाइन मॉलिक्यूल
अमीनो एसिड जब लिंक होते हैं थ्रू द डाइसल्फाइड बॉन्ड तो ये फॉर्म करते हैं सिस्टाइन। नेक्स्ट मॉडिफाइड है, 1 मिनट। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सीप्रोलीन एंड द हाइड्रोक्सीलाइसिन। सो हाइड्रोक्सीप्रोलीन एंड द हाइड्रोक्सीलाइसिन बनते हैं फ्रॉम द प्रोलीन एंड द लाइसिन जब इनका हाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है ऑफ द सेलेक्टेड लाइसिन एंड द प्रोलीन रेसिड्यू, and it is important in the formation of the collagen of connective tissue. So जब कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन का फॉर्मेशन होता है तो वहां पे प्रोलीन और लाइसिन का हाइड्रोक्सिलेशन होता है, तो उससे फॉर्म होता है हाइड्रोक्सीप्रोलीन एंड द हाइड्रोक्सीलाइसिन। जब हाइड्रोक्सीप्रोलीन एंड द हाइड्रोक्सीलाइसिन नहीं हो पाता है तो जो कोलेजन है वो प्रॉपर सिंथेसाइज नहीं हो पाता, और इन्हीं कोलेजन या इन्हीं अमीनो एसिड हाइड्रोक्सीप्रोलीन एंड हाइड्रोक्सीलाइसिन ना बनने की वजह से ही स्कर्वी रोग होता है जिसमें गम में ब्लीडिंग या कोलेजन सही से फॉर्म नहीं हो पाता, इस वजह से ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट है डेस्मोसिन एंड द आइसोडेस्मोसिन। सो इधर 2 अमीनो एसिड्स आर फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन एंड क्रॉस लिंकिंग ऑफ 4 लाइसिन साइड चेन। तो जब 4 लाइसिन साइड चेन में ऑक्सीडेशन होता है, क्रॉस लिंकिंग होती है, तो डेस्मोसिन एंड आइसोडेस्मोसिन फॉर्म होता है, एंड दीज आर फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन इलास्टिन, एंड डेस्मोसिन एंड आइसोडेस्मोसिन इलास्टिन प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। So there is a modified and non-standard amino acid. Then next है gamma carboxyglutamate. So gamma carboxyglutamate form होता है by the carboxylation of glutamic acid side chain. तो जब carboxylation हो जाता है glutamic acid के side chain पे तो form होता है gamma carboxyglutamate, and ये होता है example है इसका prothrombin. Next is a physical properties of the amino acid. So amino acid are colorless crystalline solid and it has a high melting point greater than 200 degrees Celsius, and all amino acid are soluble in water and slightly soluble in the alcohol, and R group of the amino acid and the pH of the solvent play important in the solubility. So R chain की कितनी लेंथ है या pH क्या है सॉल्वेंट का, इस पर डिपेंड करता है कि वो सॉल्युबल किस में होगा। एंड देन all amino acid are decomposed on the high temperature and all amino acid are linked together by the peptide bond. Chemical properties of the amino acid. So there is a 4 properties: stereoisomerism, optical activity, jitter ionic property and the amphoteric property. So stereoisomerism में if amino acid has a amino group at the left side so it called D amino acid, and if present in the right side so it called L amino acid. L amino acid are the more common form of the amino acid which is found in the biological system. So it called the stereoisomerism. All the amino acid are show stereoisomerism. And then next is the optical activity. So which carbon has a 4 different groups surrounds. सो जिस भी कार्बन पे 4 तरीके के डिफरेंट ग्रुप्स लगे होते हैं ऐसे कार्बन ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करता है। तो अमीनो एसिड पे जो नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें एक कार्बन पे 4 डिफरेंट एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन, अमीनो ग्रुप और साइड चेन लगा होता है। तो जितने भी अमीनो एसिड है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करते हैं। एक्सेप्शन है ग्लाइसिन, क्योंकि ग्लाइसिन पे कोई भी साइड चेन नहीं होता, वहां पर H होता है, इस वजह से ग्लाइसिन ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं करता। बाकी जितने भी अमीनो एसिड है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करते हैं। नेक्स्ट है ज्यूटर आयोनिक प्रॉपर्टी। ज्यूटर आयोनिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि जितने भी अमीनो एसिड हैं वो या तो एसिडिक नेचर के होंगे या तो बेसिक नेचर के होंगे, लेकिन उनके पास ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एज अ नेट जीरो, उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं भी हो सकता है, वो एज अ ज्यूटर आयन की तरह एक्ट कर सकते हैं। जिस भी पीएच पे अमीनो एसिड ज्यूटर आयन की तरह एक्ट करते हैं उस पीएच को आइसोइलेक्ट्रिक पीएच कहा जाता है।
ड्यूटेरायन का मतलब है कि ऐसा अमीनो एसिड जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, उसके ऊपर जो चार्ज है वो जीरो है, एक प्लस एक माइनस, तो वो आपस में क्या होते हैं, जीरो हो जाते हैं। नेक्स्ट है एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी। तो एवरी amino acid has a two group, carboxylic group and the amino group. तो carboxylic group act as a acidic group and the amino group act as a basic group. So जब भी सराउंडिंग में कुछ pH चेंज होता है तो वो उस अकॉर्डिंग एसिड या बेसिक नेचर में या न्यूट्रल नेचर में अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी कहते हैं कि कोई भी अमीनो एसिड एसिडिक भी नेचर का हो सकता है और अपने आप को कन्वर्ट करके बेसिक नेचर का भी हो सकता है। So it's all about the chemical properties of the amino acid. Next, function of the amino acid. So tyrosine are involved in the formation of the hormone like adrenaline, thyroxine, melatonin and the melanin. And next is a tryptophan which involve in the vitamin synthesis. And then glycine, arginine and methionine help to synthesize the creatine. Creatine is important to provide the energy to muscle during exercise. And then glycine and the cysteine help to form the bile salt. Bile salt help to in the lipid digestion and the emulsification of fat. And then glycine help to produce heme. Then aspartic acid and the glutamic acid help to synthesize and act as a pyrimidine base in the purine and pyrimidine metabolism. Then glycine, aspartic acid and the glutamine also act as a help in the purine metabolism, and then beta alanine act as a coenzyme A. So there is a different function of the amino acid in a different metabolism and different way. So amino acid help in the formation of hormone, vitamin, provide the energy to the muscles, lipid digestion, heme, pyrimidine and purine metabolism, and also coenzyme A. So it's all about the what is amino acid, the structure of amino acid, different classification of amino acids, different types of amino acid, and modified amino acid, their properties and the function of the amino acid. Thank you so much. If you like my videos, please like, comment and subscribe my channel, and also share with your friends.